So, hello everyone. Welcome to Simran IAS Academy. Today we will discuss the topic crime and politics or the criminalization of politics. This is based on an article published in the Indian Express recently, and this topic is useful for both UPSC, CSC, prelims, and mains. Okay, so this is the original article published in the Indian Express, Crime and Politics, written by S.Y. Qureshi, who is the former Chief Election Commissioner of India and a distinguished fellow at Ashokan University. Okay, so Supreme Court anguish on parties inaction on criminalization is welcome, but may not be enough. So, but we'll see what this article is all about and understand a few more facts and analyze the topic criminalization of politics. Okay, so why this topic is in news currently? ये topic अभी news में ही क्यों है ज़्यादा? तो on 10 August 2021, Supreme Court fined major political parties for not furnishing information about candidates having criminal background in Bihar elections. So the recently the elections were conducted. The elections to the State Legislative Assembly in Bihar were conducted, and the major political parties of India had not furnished information about candidates having criminal background. Okay, so on 10th August 2021, Supreme Court has fined all these major political parties. The court found these political parties guilty of contempt of court for not following the apex court's order dated 13th February 2020 in letter and spirit. ओके, सो जो 13 फरवरी 2020 का जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको इन पॉलिटिकल पार्टीज ने फॉलो नहीं किया है, और कोर्ट को लगा है, कोर्ट ने पाया है कि ये जो पार्टीज हैं ये हैं गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट फॉर नॉट फॉलोइंग द एपेक्स कोर्ट्स ऑर्डर. तो ये 13 फरवरी का क्या ऑर्डर था ये अभी हम देखेंगे. So the apex court gave a deadline of 48 hours to these parties to publish information about such candidates on their websites. So the Supreme Court has given a deadline of only 48 hours to these political parties to publish the details of the candidates having criminal background on their respective websites. Okay. So now we will see some facts associated with criminalization of politics. So according to the Association of Democratic Reforms, it is an association which displays reports, which conducts some analysis and presents reports on the democracy, the various aspects of democracy in India. So according to ADR, 233 MPs in the current Lok Sabha are facing criminal charges as against 187 in 2014. So जो number of MPs facing criminal charges हैं वो बढ़ गए हैं 233 in the current Lok Sabha as compared to 187 in 2014. Also according to the ADR, according to Association for Democratic Reforms, around 18% of candidates in the assembly, this is why it is spelling mistake. Okay, so according to ADR, around 18% of the candidates in the assembly elections of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal had criminal charges against them. सो जब अभी हर 100 में से 18 जो कैंडिडेट्स थे इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस हैं. ठीक है, तो जब क्रिमिनल चार्जेस इतने ज़्यादा होंगे तो कैसे हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इलीगल काम नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि पहले से ही वो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं. सो this issue has been in news for a very long time, and political parties have shied away from not giving tickets to the candidates with criminal background, and this is a very critical topic which needs further attention of all the major stakeholders in the country. Okay, so reasons for criminalization of politics. criminalization of politics होता क्यों है असल में? पॉलिटिकल विल की कमी से. ठीक है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल होता है और लैक ऑफ एनफोर्समेंट रहता है. ठीक है, जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से एनफोर्स नहीं कर पाता है अपनी गाइडलाइंस को. ठीक है, और नैरो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो है कईयों का केवल यही मकसद होता है कि उन्हें बस किसी भी तरह जीतना है. तो जो कैंडिडेट्स जीतने का जो है वो रखते हैं कि वो जीत सकते हैं, विनेबिलिटी फैक्टर उनके अंदर होता है, चाहे उनके पास
कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, उनको जो है पॉलिटिकल पार्टीज फील्ड कर देती हैं इलेक्शंस में, ठीक है। यूज ऑफ मसल पावर एंड मनी पावर। सो ये जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, इनके पास जो है पैसा भी होता है और इनके पास जो है ताकत भी होती है कि ये जो लोग हैं उनको जो है डरा धमका के या फिर पैसे दे के अपने लिए वोट जो है हासिल कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि जो है पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन इतना ज्यादा है। और फिर चौथा क्या है कि विनेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स वाले कैंडिडेट्स हैं, इनके विनेबिलिटी जो फैक्टर है, विनेबिलिटी विन करने के चांसेस हैं वो भी जो है ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन से एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये जो एक अपना स्टेटमेंट है कि एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक जो है वो साबित नहीं हो जाता तब तक जो अक्यूज्ड है वो निर्दोष है, ठीक है। ये बात जो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा कहती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। फिर इसके जो इफेक्ट्स क्या होते हैं क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स के, जब पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स आ जाते हैं तो उसका जो इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये अगेंस्ट है नोशन ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। जो अभी की गवर्नमेंट ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये मोटो भी है कि जो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस करनी है और गुड गवर्नेंस के ऊपर जो है फोकस करना है। तो ये उसके भी अगेंस्ट है कि जो पॉलिटिक्स के अंदर इतने सारे क्रिमिनल्स होंगे तो जो गुड गवर्नेंस का जो अपना मोटो है, जो अपना गुड गवर्नेंस का जो अपना इरादा है वो भी जो है शेक होगा, वो भी कमजोर होगा। तो इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी है उसके भी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो अपना प्रिंसिपल है उसके भी अगेंस्ट है ये क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। क्योंकि जब क्रिमिनल्स आएंगे पॉलिटिक्स में तो फिर फ्री और फेयर इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं, और जब फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होने हैं तो जो डेमोक्रेसी का जो असल मतलब है वो तो पूरा हो ही नहीं पा रहा है ना। फिर है इट अफेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। अब जब क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो वो जो ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको फोर्स करेंगे, तो डेफिनेटली फोर्स करेंगे अपनी कुछ ऐसे एक्शंस लेने के लिए ताकि उनको जो है बेनिफिट हो। तो उससे जो है एक अपना इंटीग्रिटी का इशू जो है क्रिएट होगा और अपना जो है एक एथिकल इशू क्रिएट होगा, एथिकल जो है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होगा ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। तो इट ऑफन लीड्स टू सोशल डिसहार्मनी। तो जब अपने जो क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे तो इससे जो है सोशल डिसहार्मनी भी हो सकती है, क्योंकि जो सोशल जो स्टेटा है, जो पॉपुलेशन है, जो ऑनेस्ट पॉपुलेशन है, उनको लगेगा कि यार ये क्रिमिनल पॉलिटिक्स के अंदर आ गया है और ये तो केवल अपना ही फायदा देखेगा, तो हमें अपने जो है राइट्स के लिए खुद ही जो है संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उससे सोशल डिसहार्मनी भी क्रिएट हो सकती है सोसाइटी के अंदर बिकॉज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। तो कोई एग्जिस्टिंग लॉ है क्या, इज देयर एनी एग्जिस्टिंग लॉ टू डील विद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? तो यस, सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 डील्स विद द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो आरपीए 1951 का सेक्शन 8 है वो करंटली डील करता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से। तो ये क्या कहता है ये सेक्शन? तो अंडर दिस द कैंडिडेट्स हु आर कन्विक्टेड विद ए सेंटेंस ऑफ 2 years और मोर, मतलब दो ऐसे कैंडिडेट्स जो कन्विक्ट हो चुके हैं 2 साल या उससे ज्यादा के लिए इन ए क्रिमिनल केस, दे आर डिस्क्वालिफाइड टू कंटेस्ट फॉर 6 years आफ्टर देयर इम्प्रिजनमेंट इज ओवर। सो बेसिकली ये सेक्शन 8 आरपीए 1951 का क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है, उसको जो है कोर्ट, किसी भी कोर्ट ने सजा दे दी है, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर किसी भी कोर्ट ने उसको दे दी है, तो जब उसकी सजा कंप्लीट होगी, मान लीजिए कि उसको एक कैंडिडेट था, उसको 2017 के अंदर किसी कोर्ट ने 5 साल की किसी क्राइम के लिए सजा दे दी, तो 2017 से 2022 तक तो वो जेल में रहेगा। तो जब वो 2022 में छूटेगा, उस दो टाइम से लेके अगले 6 साल तक, मतलब 2022 से लेके 2028 तक वो जो है पॉलिटिक्स के लिए वो मतलब कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शंस में, ठीक है। तो ये सेक्शन 8 ऑफ द आरपीए 1951 कहता है। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि ये जो है जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको ये बार नहीं करता कंटेस्ट करने से, मतलब जो अंडर ट्रायल्स हैं जिनको अभी तक कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है, जिनको कोर्ट ने अभी तक सजा नहीं सुनाई है, वो जो है कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस, जबकि जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको वोट देना अलाउड नहीं है, पर जो अंडर ट्रायल जो क्रिमिनल्स हैं वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं भले ही वो वोट ना दे पाए। तो ये भी जो है अपना फ्लॉ है इस लॉ का, ठीक है, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। तो व्हाट आर द शॉर्ट फॉल्स? अब वही जो अभी हमने बात करी, जो इसके शॉर्ट फॉल्स है वो देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग लॉ के शॉर्ट फॉल्स क्या है? तो अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरपीए 1951 अंडर ट्रायल्स आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। सो भाई हमें पता है कि जो है कोर्ट के अंदर पेंडेंसी केसेस की कितनी होती है, कई साल लग जाते हैं अपने डिसीजन आने में, कन्विक्शन आने में कितने साल लग जाते हैं, तो तब तक वो अंडर ट्रायल ही रहेगा क्रिमिनल। और उसने अगर क्राइम सच में किया है तो उसका जो माइंडसेट है, उसकी जो थिंकिंग है वो तो वही है, क्रिमिनल वाली है। तो
जब तक उसका जो है कन्विक्शन नहीं आ रहा तब तक वो अंडर ट्रायल है और तब तक वो जो है इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है। तो उससे जो है वही फिर जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को जो रिड्यूस करने के, उसको खत्म करने के जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं वो एक तरीके से डिफीट हो रहे हैं, क्योंकि हमने अंडर ट्रायल्स को तो अलाउ कर रखा है पॉलिटिक्स के अंदर जो है कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस, ठीक है। तो however the under trials are not allowed to vote, but he or she can continue to contest the elections till he or she is not convicted for an offense of more than 2 years imprisonment। तो ये भी एक इसका जो है फ्लॉ है, इसको ठीक करने की जरूरत है। फिर देख लेते हैं स्टेप्स इन द पास्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट टू कर्ब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्ब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए पास में, अब हम वो देखते हैं। तो फरवरी 2020 के अंदर, इन फरवरी 2020, the apex court ordered the political parties to publish the entire criminal history of their candidates for assembly and lok sabha elections। so फरवरी 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें उसने मैंडेट किया था पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो पब्लिश करे जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके कैंडिडेट्स की, पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट्स की असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। और उसमें ये भी जो है कहा गया था उस ऑर्डर के अंदर कि ऑल्सो द रीजंस based on which the political parties decided to field suspected criminals had also need to be mentioned। और विनेबिलिटी फैक्टर वो जो है कोई रीजन नहीं हो सकता कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हमने इस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को इसलिए फील्ड करा है क्योंकि हमें लगता है कि ये जीत सकता है इलेक्शन, हमें जितवा सकता है, तो वो कोई रीजन नहीं हो सकता उस विनेबिलिटी फैक्टर रीजन के अलावा। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है तो वो इसके अंदर जो है मेंशन करने की जरूरत थी एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ फरवरी 2020। तो सच डिटेल्स नीड टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर्स, पार्टी वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया हैंडल्स। तो जो लोकल, मान लीजिए गुजरात के अंदर इलेक्शन हो रहा था, गुजराती जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर और पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर जितने भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इन पार्टीज के, उन सब के ऊपर ये क्रिमिनल बैकग्राउंड हिस्ट्री की जो डिटेल्स हैं ये पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था फरवरी 2020 के ऑर्डर के अंदर। तो बट द पॉलिटिकल पार्टीज फेल्ड टू पब्लिश सच डिटेल्स इन द असेंबली इलेक्शंस कंडक्टेड अर्लियर इन 2021 इन वेरियस स्टेट्स। तो जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो 2021 में इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सारी जो डिटेल्स हैं वो पब्लिश नहीं करी थी। तो एपेक्स कोर्ट ने जो है इसके ऊपर क्या कहा है और लेटेस्ट वर्डिक्ट क्या दिया है ऑन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑन 10 अगस्त 2021। दिस इज 2021, ओके, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज मॉडिफाइड इट्स फरवरी 2020 ऑर्डर, फरवरी 2020 ऑर्डर which stated that criminal history of candidates be published 2 weeks before the nomination, ठीक है। तो 2020 फरवरी 2020 के ऑर्डर के अंदर क्या था कि जब मान लीजिए आज किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो रहा है और उसकी जो है क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो आज से 2 हफ्ते पहले ही उसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में अपलोड करने की जरूरत थी, ठीक है। पर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, रूल किया है कि जो क्रिमिनल हिस्ट्री जो है कैंडिडेट्स की हैज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स विद इन 48 आवर्स ऑफ देयर सिलेक्शन, ठीक है। मान लीजिए आज किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, अब वो अपना जो है टिकट दी है जिसके पास जो है क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो उसको आज जो है उसको टिकट देने के 48 आवर्स के अंदर अंदर उसकी जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री की डिटेल्स हैं उसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश करने की जरूरत है, ठीक है। उसमें ये नहीं आप कर सकते कि भाई नॉमिनेशन अपना 1 महीने 1.5 महीने बाद है तो तभी हम जो है उससे 2 हफ्ते पहले ही अपनी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको पब्लिश करेंगे। हमें आज ही अगर हम सिलेक्ट कराए तो उसके 48 दिन के अंदर अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर 2 दिन के अंदर अंदर उसकी जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश करने की जरूरत है। तो द एपेक्स कोर्ट ऑल्सो मेड द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट्स मैंडेटरी फॉर विड्रॉइंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द एमपीज एंड एमएलएज। Also the court indicated that a special bench may be formed in Supreme Court to monitor the cases involving accused MPs and MLAs। तो एक कोर्ट ने यही बोला कि एक स्पेशल बेंच बनाई जा सकती है इन सुप्रीम कोर्ट टू मॉनिटर द केसेस इन्वॉल्विंग accused MPs and MLAs। Okay, the court also directed the Election Commission of India to create a mobile app for providing information on criminal antecedents of candidates। So Election Commission of India को बोला गया है कि एक ऐप बनाइए जिसपे जो है जो क्रिमिनल हिस्ट्री बैकग्राउंड्स की है, क्रिमिनल जो हिस्ट्री है कैंडिडेट्स की वो जो है उसके ऊपर डिस्प्ले हो सके, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जो है व्हाट फर्दर नीड्स टू बी डन, और क्या करने की जरूरत है। तो द नेचर ऑफ गवर्नेंस नीड्स टू चेंज फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल
to make the governance more transparent, accountable and pervade. ठीक है, अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड अमंग वोटर्स अबाउट देयर वोटिंग राइट्स। तो ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है वोटर्स के अंदर उनकी वोटिंग राइट्स को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स मस्ट टेक ए वेरी टफ स्टैंड अगेंस्ट पॉलिटिकल parties which violate the apex court's guidelines on this matter. A strict action must be taken by the Supreme Court and High Courts to ban people who are accused with serious criminal charges फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। तो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को टू बैन पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स could be expedited to wean out tainted legislatures quickly। मान लीजिए कि कोई जो है लेजिस्लेटर बन गया, एमपी एमएलए बन गया, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका, तो उसको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है सेटअप करने की जरूरत है ताकि उसको जो है जल्दी से जल्दी हटाया जा सके अपनी उसकी पोजीशन से। तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन इलेक्शन फंडिंग बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बी ग्रांटेड द पावर टू डू ए थर्ड पार्टी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनकी जो है थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की जो पावर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने की जरूरत है। तो I hope that all your doubts regarding the topic criminalization of politics will be resolved after you watch this lesson, and you will be able to tackle all kinds of questions in both UPSC CSC prelims and mains asked from this topic. For further understanding and for better learning about the topics, various topics of all the static courses, all the static subjects, you can refer to the Learn by Maps initiative of Simran IAS Academy. They present the information and try to explain the topics, very complex topics, in a very easy to understand manner with the use of tables, diagrams, infographics, flowcharts, etc. You can check the description for the contact information of Simran IAS Academy, and you can contact them there to get the sample PDF. Okay, thank you for watching the lesson. Have a nice day.